Good morning, everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes and days. So let's start today's class. Before starting today's class, I would like to tell you that what I covered till now. अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है कॉन्ग्रेंसी में. हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रेंसी के बेसिक्स देखे थे. कॉन्ग्रेंसी होता क्या है. Then after that, I had started congruency of line segment, congruency of angles. Also, we had seen some basics about congruency of triangles with the help of some examples. We were learning in previous lecture criteria for the congruency. हम लोग अपने previous lecture में criteria देख रहे थे कि congruency के criteria कौन कौन से होते हैं. So we had seen in previous lecture that there are 4 types of criteria in our triangle. So triangle में 4 types से criteria होते हैं. Where we had seen 2 types of criteria. उसमें हम लोगों ने 2 types of criteria के बारे में देख लिए थे, जिसको हमने बोला था that is your part 1. Now in this lecture we'll try to learn remaining 2 types of criteria about the congruency of triangles. अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो हमारे 2 क्राइटेरिया बच गए हैं. अब हम लोगों ने कौन कौन से क्राइटेरिया कवर किए थे कल हम लोगों ने ट्रिपल एस, दैट मीन्स साइड साइड साइड, व्हेन 3 sides are given and these corresponding sides are equal in both the triangles, then we had told that triangles are congruent. Second criteria was when 2 sides and 1 angle is given and these 2 corresponding sides and angles are equal in 2 triangles, then those 2 triangles are congruent to each other. For today, we'll try to learn congruency when 2 angles and 1 side is given. This is our third criteria. And when two right angle triangle is given, also a side and hypotenuse is given, then at that time we'll try to tell the congruency between those triangles. So that means today we'll try to learn ASA and RHS. तो आज हम लोग इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे with the help of some examples. If you have any query, then you can note down your query on a rough sheet. Then after that you can ask. I'll try to give that solutions. So let's start today's class. I'm going to start today's class with our third criteria, which is angle side angle criteria. तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आज हम लोग ये देखेंगे. सो आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल ABC हमने लिया है. नाउ आई एम ऑल्सो टेकिंग अनदर ट्रायंगल PQR. एक दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है PQR. अब इस ट्रायंगल को हमने लिया है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किन कंडीशंस में मिनिमम कितनी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कह सकें कि कॉन्ग्रेंट हैं. सो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस 2 angles and the included side of a triangle are equal. इसमें क्या गिवन है कि 2 angles and the included side of a triangle. सपोज ये हमारा ट्रायंगल ABC है, इसमें 2 angles हम ले रहे हैं. आई एम टेकिंग एंगल B. That means angle ABC and second angle is PAC. इन दोनों का हमने ले लिया, ये दोनों हमारे एंगल्स. नाउ एंड द इंक्लूडेड साइड, और जो इंक्लूडेड साइड इसकी है ये AB. ठीक है, AB साइड, दिस साइड ऑफ आ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल की, आर इक्वल टू द 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब ये इक्वल हो जाएंगे. 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एक ये एंगल और एक ये एंगल. करस्पॉन्डिंग मीन्स कि जो P एंगल है ये एंगल A के इक्वल है और जो एंगल Q है ये एंगल B के इक्वल है. तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. these एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड जो कि इसको इंक्लूड कर रही है. दैट मीन्स ये बेस, ये कॉमन बेस हो जाएगा फॉर दीज 2 एंगल्स. So in this way we can say that triangles are congruent. इस तरीके से जब भी हमारे पास कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR congruent. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR congruent, ये हम ऐसे प्रूफ करके बता सकते हैं. So अब अगर इसको हम लिखना चाहें, अभी हमने जो चीज़ें बोला है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हम कैसे लिखेंगे. तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने, जब हमें लिखना होगा तो. सो आई एम टेकिंग हियर अ
एक हम टेबल लेते हैं और उस टेबल में हम शो करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन रहती हैं क्राइटेरिया के फॉर्म में। सो लेट्स राइट हियर, चलिए यहाँ पे एक लिखते हैं। क्या क्या गिवन था? इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमारे पास एंगल है एंगल BAC, दैट मीन्स एंगल A। हमने क्या लिया? एंगल BAC, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल में, दिस इज आई एम टेकिंग दैट टाइम, दिस टाइम आई एम टेकिंग एंगल QPR, आई एम टेकिंग एंगल QPR, ठीक है। ये वाला दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ओके, नाउ एक साइड गिवन है, साइड AB, this side AB is equal to side PQ of the another triangle. So I am writing here side AB equal to side PQ, ठीक है। तो अब ये जो साइड है, इस साइड के सेकेंड एंड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल B। तो इन ट्रायंगल ABC इसमें हम बात करें तो इसमें जो एंगल मिल रहा है हमें एंगल ABC, एंगल ABC, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू जो दूसरे ट्रायंगल में सेकेंड साइड का ये सेकेंड एंड पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल PQR, एंगल PQR, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये दोनों एंगल, दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर, हमें यहाँ पे क्या गिवन था? यहाँ पे हमें गिवन था कि दोनों एंगल्स ये कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, तो ये हमारे क्या है? दिस इज आर एंगल। अभी हम यहाँ शॉर्टकट में A लिख दे रहे हैं। AB इक्वल टू PQ, एक साइड गिवन है AB इक्वल टू PQ, तो ये हमारी है साइड, दिस इज आर साइड, ऐसे लिख दे रहे हैं। नाउ थर्ड इज एंगल गिवन, एंगल ABC, दैट मीन्स ये ब्लू वाला एंगल, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, दूसरे ट्रायंगल का एंगल PQR। सो अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में A। अब देखिए ASA, ये क्राइटेरिया हमारा क्या है? ASA, दैट मीन्स टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन, देन वी कैन से दैट ऐसे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसे इन ये कंडीशंस गिवन हो, वन एंगल, वन साइड एंड टू एंगल्स, these correspondings are equal, so we can say that triangle ABC is congruent with triangle PQR। congruent means अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन दोनों ट्रायंगल को रखें तो कंप्लीटली ये कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने कॉन्ग्रेंसी इनकी प्रूफ कर दिया है। अब उसके बाद हम थोड़ा कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन मीन्स कि हमने कल भी एग्जांपल लिया था, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था। कंक्लूजन मीन्स ये मीनिंग हमारी यहाँ पे है कि सपोज हमें भूख लगी है, तो भूख लगने के बाद हमने एप्पल खा लिया, ठीक है। एप्पल खाने के बाद हमें क्या होता है कि हमारी भूख शांत हो जाती है। तो कंक्लूजन उससे हम क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जब भी हम एप्पल खा लेंगे तो फिर हमारी भूख शांत हो जाएगी, दैट मीन्स भूख शांत हो जाती है एप्पल खाने से, तो वो हमारा कंक्लूजन हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन निकालें फर्स्ट वाले पार्ट्स, देखिए फर्स्ट में एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, ये हमने लिखा है। तो एंगल यहाँ इक्वल है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। देखिए एंगल BAC ये एंगल था, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? BC। ये BC साइड ये इक्वल हो जाएगी जो दूसरा एंगल है, एंगल इस ट्रायंगल PQR का, दैट मीन्स इक्वल टू एंगल QPR, ये वाला हमारा एंगल है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये साइड, दैट मीन्स साइड BC इक्वल टू साइड QR हो जाएगा। साइड BC इक्वल टू QR, ठीक है। हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। कब लिख पाएंगे? जब हम कॉन्ग्रेंसी दोनों को प्रूफ कर देंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। एट दैट टाइम वी कैन राइट इट हियर। सो नाउ
लेट अस, चलिए कंक्लूजन निकालते हैं। जो सेकंड गिवन था, सेकंड क्या गिवन था, ए बी इक्वल टू पी क्यू, साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो अब ये साइड गिवन है, तो साइड से अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो निकलेगा एंगल का, इक्वल एंगल का कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो अब वो क्या है, कंक्लूजन निकलेगा। चलिए हम देखते हैं इसमें कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो ए बी है, साइड ए बी ये वाली साइड, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल सी, दैट मीन्स पी सी ए, एंगल हम क्या लिखेंगे, एंगल पी सी ए, ये एंगल इक्वल हो जाएगा जो दूसरा ट्रायंगल है उसके एंगल, उससे करस्पॉन्डिंग एंगल के। अब ये ए बी है, ए बी इक्वल था पी क्यू के, तो पी क्यू मीन्स ये वाली साइड है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल आर, दैट मीन्स एंगल क्यू आर पी, एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। क्या बोला हमने कि जो अभी हमारी ये साइड्स होंगी उन करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड, उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो उसके जस्ट अपोजिट जो भी एंगल होगा वो एंगल इक्वल हो जाएगा, वो एंगल इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। नाउ सी, अब चलिए देखते हैं जो हमारी थर्ड कंडीशन गिवन थी इस क्राइटेरिया में, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो उससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला ब्लू वाला एंगल, दिस इज एंगल ए बी सी, इसके जस्ट अपोजिट हम कंक्लूजन निकालें तो साइड का निकलेगा। साइड कौन सी है, दिस इज साइड ए सी या फिर साइड सी ए, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला। तो वी आर गेटिंग हियर, हमें यहाँ पे मिलेगा साइड सी ए, अब ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यहाँ पे है, तो एंगल पी क्यू आर, अब इस वाले एंगल के जस्ट अपोजिट हमारा जो साइड है वो साइड है पी आर या फिर आर पी, सो आई एम राइटिंग हियर इक्वल टू आर पी। क्या किया हमने, एंगल ए बी सी, इसके अपोजिट साइड था सी ए, अपोजिट साइड था सी ए, वो हमने लिख दिया इक्वल टू, फिर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, एंगल पी क्यू आर था ये, तो एंगल पी क्यू आर के जस्ट अपोजिट साइड हमारी आर पी, तो इक्वल टू आर पी, तो साइड को साइड से हमने इक्वल कर दिया। ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ये कंक्लूजन हम लोग उसी टाइम ड्रॉ करेंगे व्हेन विल प्रूव दैट these two triangles are congruent to each other। ठीक है, ये हमारा होगा कंक्लूजन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने लिया है। नाउ वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल दैट देयर आर टू ट्रायंगल्स हैं। अब वी हैड टू चेक दैट इधर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। तो लेट्स सी, फर्स्ट विल सी दैट व्हाट आर दी टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से टू ट्रायंगल्स हैं। सो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल हमारे पास ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ओ डी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल बी ओ डी। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ डी, वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स, हमारे पास ये ट्रायंगल्स हैं। नाउ अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। तो let us see which are the conditions given here. Now I am taking here angle AOC, that means this angle AOC या angle COA, क्या हम ले रहे हैं, एंगल AOC, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, है ना, इक्वल टू एंगल BOD या फिर एंगल DOB, क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के जो एंगल गिवन है एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 30 डिग्री, दिस वैल्यू विल बी 30 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, हम राइटिंग है इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो भी हम लोगों ने पहले ही सीखे हुए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी होते हैं तो ये हम दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एक हमें कंडीशन ये मिल गई। नाउ सेकंड कंडीशन इज गिवन है यार, सेकंड कंडीशन इज गिवन है, देखिए साइड AC की वैल्यू है 3 यूनिट और साइड DB की वैल्यू है 3 यूनिट, दोनों
ट्रायंगल्स में, दैट मीन्स 3 and 3 दोनों इक्वल हैं. सो वी कैन से दैट दिस साइड AC इक्वल टू साइड DB, these two are equal. ठीक है ना, these two sides are equal. और कितना है, this is 3 unit, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा गिवन है. ओके, नाउ ऑल्सो वी हैव गिवन अनदर एंगल, एक और एंगल गिवन है, ये एंगल C. देखिए एंगल C मीन्स एंगल ACO, एंगल ACO. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. देखिए 70 डिग्री है, एंगल ACO 70 डिग्री है. और एंगल ODB, ठीक, दिस इज 70 डिग्री. ये गिवन है हमें, ठीक. तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस इज आवर एंगल, और ये जो गिवन था ये AC इक्वल टू DB, दिस इज साइड, और ये भी एक एंगल ही है. तो दैट मीन्स देखिए ASA क्राइटेरिया हमारा जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, दिस इज ASA. सो इन दिस वे वी कैन से दैट, इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल दैट मीन्स ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल BOD, ठीक है. ये हमारे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक. तो इस तरीके से हम लोग अपनी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं. अब जो हमने कंक्लूजन निकाले थे इससे हम लोग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा कि जैसे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो साइड इक्वल हो जाएंगी. AC इक्वल टू DB है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल से इक्वल हो जाएंगे. एंगल ACO इक्वल टू एंगल ODB, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसा आप लोग उससे कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो इस तरीके से हमारा क्राइटेरिया ASA ये कंप्लीट होता है. अब नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्राइटेरिया, एक अपनी और क्राइटेरिया लेते हैं और उसकी ओर देखते हैं क्या इसमें चीजें गिवन होती हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया RHS. R मीन्स राइट एंगल्स, H मीन्स हाइपोटेनस, S मीन्स साइड. R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनस, S मीन्स साइड क्राइटेरिया. तो इस क्राइटेरिया में राइट एंगल, हमें जो ट्रायंगल लेना है वो ट्रायंगल लेना है राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये हमने ले लिया है राइट एंगल ट्रायंगल AB and C, ठीक है. नाउ PQR वी हैव अनदर ट्रायंगल, दोनों हमारे राइट एंगल हैं. तो दैट मीन्स इन ट्रायंगल AB हियर इज दिस इज एंगल B इज राइट एंगल एंड एंगल Q इज राइट एंगल. ये हमारा राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो ये वाला क्राइटेरिया हमें इसमें देखना है, ठीक. और इसमें क्या गिवन है, हाइपोटेनस. इसमें हाइपोटेनस गिवन, हाइपोटेनस मीन्स दिस साइड, ठीक है ना, दिस साइड AC, और हियर इज PR, ये गिवन है. ओके, नाउ एक साइड और गिवन है, एक साइड आई एम टेकिंग हियर BC, सपोज टेकिंग हियर BC और ये QR. दीज टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो अब इसमें क्या बोलता है ये क्राइटेरिया हमारा कि इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये हाइपोटेनस, ठीक है, एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है. AC और PR ये दोनों इक्वल हैं, हाइपोटेनस के इक्वल है, और दूसरी साइड BC ये दूसरे ट्रायंगल के साइड QR के इक्वल है. तो इन दिस वे जब भी हमारे पास होता है देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो उस टाइम पे ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं. अब अभी हमने ये क्या बोला है, अभी हमने ये बोला है कि क्या इसमें गिवन होगा, इसमें गिवन होगा एक ये, सबसे पहले तो गिवन होगा कि राइट एंगल होगा उसमें. राइट एंगल मीन्स हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी हमारा एंगल ABC, ठीक है ना. ये इक्वल टू है एंगल PQR के, ये इक्वल टू है एंगल PQR के. और ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ हाइपोटेनस की वैल्यू है AC, ट्रायंगल ABC में दिस इज AC, दिस द वैल्यू ऑफ hypotenuse, and also PR is the hypotenuse of triangle PQR. So I'm writing here AC equal to PR. This is hypotenuse. ये हमारा है hypotenuse. So I'm writing here HYP hypotenuse. And एक साइड और गिवन है जो इक्वल है, तो इसमें हम ले रहे हैं BC,
इन ट्रायंगल ए बी सी आई एम टेकिंग हियर बी सी, ये वाली साइड इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल की जो साइड है क्यू आर वाली जो साइड है इसके इक्वल है, ठीक है ना, क्यू आर, ठीक, जिसको हम यहाँ पर भी कह सकते हैं बेस है, ये क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, ये इक्वल है, ठीक। देखिए हमारा जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है दिस इज नोन एज बेस, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है नोन एज बेस, और जो ए बी जो ऐसे परपेंडिकुलर रहता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक। और जो ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, दिस इज नोन एज हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये सभी साइड्स के नेम होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर, दैट मीन्स बेस यहाँ पे हमने इक्वल लिए हैं, तो ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो एंगल है दिस इज एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल, नाउ दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज अनदर साइड। तो देखिए RHS ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, जब भी ऐसे क्राइटेरिया फॉलो होगा एट दैट टाइम वी कैन से दैट, उस टाइम हम लोग ये कह सकते हैं कि आर ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR, ठीक है ना। हम उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट जब हम प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद अगर हमें कंक्लूजन निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर ये कहा जाएगा कंक्लूजन निकालने के लिए, तो कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इससे निकालते हैं कंक्लूजन। एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, देखिए ABC के अपोजिट, एंगल ABC के अपोजिट हमारी जो साइड है ये वाली हाइपोटेनस वाली है, ठीक है ना, हाइपोटेनस वाली है। तो ये तो गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि हाइपोटेनस हमारे इक्वल है, दैट मीन्स AC इक्वल टू PR, ठीक है ना, ये तो गिवन था, ये हमने कंक्लूजन निकाला। और AC इक्वल टू PR, ये हाइपोटेनस है, साइड है, साइड के अपोजिट हमारा ये एंगल ही आएगा, ये एंगल आएगा, ठीक है। सो इसमें एंगल हमारा जो आ रहा, ये आ रहा है एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है ना, ये हमारा है 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला सेकंड वाले स्टेटमेंट से। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट है BC इक्वल टू QR, सो दिस BC इक्वल टू QR, तो BC के अपोजिट हमारा कौन से साइड हो जाएगा, ये तो साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल होगा, एंगल A, दैट मीन्स एंगल BAC, एंगल इससे हमारा क्या निकलेगा कि एंगल BAC, ये एंगल इक्वल हो जाएगा जो QR वाली साइड है उसके जस्ट अपोजिट एंगल जो बनेगा, QR साइड ये है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, ये P, सो वी कैन से दैट दिस इज एंगल QPR या फिर एंगल RPQ, ये एंगल्स हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इसमें। तो ये हमारी होती है RHS क्राइटेरिया। नाउ आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास एक ट्रायंगल DAB है, ट्रायंगल DAB, ये ट्रायंगल, और दूसरा एक ट्रायंगल है ABC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC। हमें चेक करना है कि जो फिगर गिवन है इसमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हमने किस किस ट्रायंगल की बात की है, हमने लिया है ट्रायंगल DAB, एक ये वाला ट्रायंगल लिया ग्रीन वाला, ठीक है, और एक दूसरा जो ट्रायंगल लिया है हमने वो ट्रायंगल हमारा एक ये वाला है, ये AB एंड C। हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम ले रहे हैं और चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, कौन सा क्राइटेरिया इसमें फॉलो हो रहा है। सो नाउ फॉर ट्रायंगल DAB हम ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि एक एंगल गिवन है जो कि एंगल DAB, ये एंगल DAB, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन दैट दिस इज 90 डिग्री, एंगल DAB, दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री यहाँ पे। नाउ अगर हम ट्रायंगल
ए बी सी इसकी बात करें तो इसमें एंगल ये गिवन है बी, एंगल बी मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ये एंगल ए बी सी। दीज टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे हैं ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। नाउ अब हम इसमें देखने की कोशिश करें कि कोई साइड है ऐसी जो इक्वल है। वो कौन सी साइड है जो इक्वल है? इसमें ये गिवन है DB, दिस इज हाइपोटेनस फॉर द ट्रायंगल DAB। ट्रायंगल DAB के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है। दिस इज साइड DB, सो आई एम राइटिंग हियर DB। दिस इज इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस क्या है? इसमें AC है। 90 डिग्री के अपोजिट जस्ट जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ट्रायंगल ABC में अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC। तो देखिए ये भी इक्वल है। AC मीन्स ये वाली साइड, दिस साइड इज इक्वल। ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये साइड इक्वल है किसके? इस DB के इक्वल है। साइड DB के इक्वल है। तो हम यहाँ पे DB इक्वल टू AC लिख सकते हैं। DB इक्वल टू AC। दिस इज आर हाइपोटेनस, दिस इज आर हाइपोटेनस। ओके, दिस इज आर हाइपोटेनस है। नाउ और क्या गिवन है? और इसमें गिवन है, देखिए इसमें बेस मीन्स हम देखने की कोशिश करेंगे तो बेस AB है। बेस इज AB। तो AB इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। AB दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। कैसे कॉमन है कि देखिए AB जो है AB है ये ट्रायंगल DAB में भी आ रहा है ये वाली साइड, और ABC ट्रायंगल है इसमें भी आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दैट AB इक्वल टू AB के इक्वल है। ठीक है, अब क्यों इक्वल हो जाए? बिकॉज दिस इज कॉमन, ये कॉमन है। दिस इज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन। ठीक, अब इसमें थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर राइट एंगल, दिस इज आर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है? साइड है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस here these two triangles are following a criteria of RHS की क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल हमारे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, तो हमारे जो ट्रायंगल DAB थे और जो ट्रायंगल ABC हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे तो इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रेंसी किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स की, और फिर उसके बाद में हम लोग कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना हो तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो फिर हम लोगों ने क्या क्या सीखा है कल के लेक्चर को मिला करके, क्या क्या सीखा है? फर्स्ट हमने सीखा था कि जब तीनों साइड्स गिवन हो ऐसे ट्रायंगल में, तो उस टाइम पे ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट हैं। या फिर दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो उस टाइम पे भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। देखिए इसमें क्या है, टू साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन उसके बीच का है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सो इन दिस वी कैन से दैट ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं। और क्या गिवन हो, और इसमें गिवन हो एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स दो एंगल और एक साइड गिवन हो, तो फिर उस टाइम हम कह सकते हैं कि हमारे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट में एक हमने देखा था RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल हो उसमें हाइपोटेनस गिवन हो, ठीक है, और एक साइड और गिवन हो, ठीक, एक साइड और गिवन हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं एक दूसरे के। कॉन्ग्रेंट मीन्स कि अगर दोनों ट्रायंगल को हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर दें, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग ने अपनी कॉन्ग्रेंसी देखी कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूफ करना होता है, और इन्हीं चीज़ों को हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्ग्रेंसी ऑफ योर ट्रायंगल।
If you have any confusion, then you can ask me. I'll try to give solutions of all your questions. Thank you.